welcome back. This is Mamta Verma. In last class, we have discussed about the Newton theory, that is reader response theory, and we have already done two classes on this theory. So, in first class, we have discussed about the introduction of the reader response theory, the father of the reader response theory. Okay, second class, we have discussed about the Louis Russell Ballot, who is the father of the reader response theory, and all his work and concept which is related to this theory. And in next class mein I have discussed about the Wolfgang Iser, okay, his work and his concept. The next literary critic which belong to this age is Hans Robert Joss, which is German literary critic. So first इसका वर्क देख लेते हैं, Towards an Aesthetic of Reception, which was published in 1978. Second है Aesthetic Experiences in Literary Hermeneutic. Okay, so that is his second work. 1982 में पब्लिश हुआ था ये, ठीक है. So Towards an Aesthetic of Reception, his first work, and second है Aesthetic Experiences in Literary Hermeneutic. Okay, so now I'm going to talk about the theories which is related to and given by this author. Just 1 minute, readers. Okay, so that theory, horizon of expectation, okay, and second जो theory दी है उन्होंने, that is reception theory. Okay, so we will discuss one by one. What is horizon बोल सकते हो, इसको pronounce कर सकते हो, horizon और horizon both are correct. Okay, so horizon of expectation होता है कि whenever any reader who is expert in this feeling of reading the text, okay, he had a lot of experiences about the word, about the language, okay, about the literary work and related the author. So he had read a lot about the literary work. Okay, so that kind of reader, when he going to read about the text, okay, so he has some expectation in his mind, okay, which belongs to his past experiences, okay, which belongs to his past experiences of the text. Okay, so that kind of reader, because he already know the meaning of the text, because he has read about about this kind of text. Okay, he so that kind of reader is biased to find out the meaning because of his past experiences. Okay, so that kind of reader is biased to find out the meaning according to the author's intuition. Why? Because he already know the name of the author, he already know the subject of the text, name of the text, okay, and historical period in which the text is written. Okay, so everything has the poet has in his mind because of his past reading. Okay, so हम सब कहते हैं ना कि हमारी जो पास्ट लर्निंग होती है, पास्ट नॉलेज होती है, वो हमारी जो फर्दर रीडिंग्स होती है, हमारी फ्यूचर की रीडिंग्स होती है, उनमें काफ़ी हेल्प करती है. तो वही बात यहाँ होती है, जो रीडर्स होते हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है, उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है पास्ट रीडिंग से, तो इस तरह की जो रीडर कोई टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उनका जो सेम नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो फर्दर जो उनके टेक्स्ट को वो रीड करते हैं तो उसमें उनकी हेल्प करता है. तो उनके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन होती है, और जब वो पढ़ते हैं कोई भी नया टेक्स्ट तो वो जो उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो इमीडिएटली उनके माइंड में आता है कि ये टेक्स्ट है, इसका ये मीनिंग, इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, ये इस ऑथर के द्वारा लिखा गया है, ये टेक्स्ट का हिस्टोरिकल पीरियड ये है. तो ये सब होता है होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन. ठीक है, उसके बाद आता है रिसेप्शन थ्योरी. अब रिसेप्शन थ्योरी है दैट इज इसको
ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको जितने स्टार लगाओ कम है। और इस एग्जाम में है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पता नहीं है कितनी बार पूछे गए हैं दोनों। सो रिसेप्शन थ्योरी है, इसके नाम से तो हंस रॉबर्ट जोस जानते हैं, ठीक है। हंस रॉबर्ट जोस को जब आप सर्च करोगे तो इसकी रिसेप्शन थ्योरी पहले आती है, ओके। सो व्हाट इज रिसेप्शन थ्योरी? रिसेप्शन थ्योरी होती है कि every reader who read the text who has different reception in his mind regarding the text। मतलब जो भी रीडर जो टेक्स्ट पढ़ता है तो उसके माइंड में उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग जो मीनिंग होता है, जो आइडियाज होते हैं या जो इंटरप्रिटेशन है उस टेक्स्ट की, वो डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट रिसेप्शन क्यों होगी? रिसेप्शन उन्होंने बोला है इंटरप्रिटेशन को, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन या डिफरेंट आइडिया मीनिंग कुछ भी लगा लो जो रीडर निकालते हैं। सर व्हाई द रिसेप्शन इज डिफरेंट? बिकॉज एवरी रीडर्स केम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, different culture, different traditions, okay। So all of this all of this of the background of the reader, his cultural, his historical, everything is effect on the text, okay। Only then due to their different knowledge of experiences, different their background, that's why they gave the different reception, okay। सो जो बैकग्राउंड होता है उनका, क्योंकि वो सभी रीडर है वो सेम बैकग्राउंड से तो आते नहीं, सेम कल्चर से नहीं आते, सेम ट्रेडिशन नहीं होती, ओके ना सेम उनकी कंट्री होती है, तो सब कुछ डिफरेंट होता है रीडर का। इसीलिए जब ऐसे रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उनका, अगर वो सेम टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे तो उनका मीनिंग है वो डिफरेंट ही होगा। क्यों होगा डिफरेंट? क्योंकि डिफरेंट कल्चर से वो आते हैं और ये सब उनके टेक्स्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है रिसेप्शन थ्योरी। अब नेक्स्ट जो क्रिटिक है, वैसे तो हम न्यू क्रिटिसिज्म में उनको पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक वर्क है जो रिसेप्शन थ्योरी, जो इस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनका नाम भी इस थ्योरी में आता है, वो है आई ए रिचर्ड। ठीक है। सो आई ए रिचर्ड है जो न्यू क्रिटिक है, लिटरेरी न्यू क्रिटिक, जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म ट्रम्प को दिया था, ठीक है। रिचर्ड, आई रिचर्ड है भाई, समझ में आ रहा है कि। तो इनका एक वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ओके। इसका सबटाइटल था ए स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट, ओके, which was published in 1929, okay। सो आई रिचर्ड है उनका एक ये वर्क है जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पब्लिकेशन, इसका सबटाइटल, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन्होंने इस वर्क में, व्हेन आई रिचर्ड वाज द प्रोफेसर इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ओके। वो फिलोसोफर भी है, क्रिटिक भी है, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक, प्रैक्टिकल क्रिटिक है वो, ठीक है। तो इन दिस वर्क ही टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द reader, response of the student, okay। When I Richard was the professor in the Cambridge University, so once he tried to check the critical thinking of the students, that how the student interpret any text, okay, how the student explain any text, find out the meaning। So what he did, he gave the 13 different point to the students and said that interpret it, okay। उन्होंने बोला कि इस टेक्स्ट को है एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, ओके, बिकॉज देयर रिस्पॉन्स वॉज वेरी पुअर, ओके, एंड डिफरेंट, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, ओके। सो ये था उनका रिस्पॉन्स था, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था, बहुत ही ज़्यादा मतलब मीन था, ठीक है। तो उस बेस पे इन्होंने ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है इसको दिया है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो रीडर्स का रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो किसी भी टेक्स्ट से करेक्ट मीनिंग अगर रीडर को नॉलेज है, वर्डिंग की नॉलेज है या लैंग्वेज की नॉलेज है, तभी तो किसी टेक्स्ट से करेक्ट मीनिंग बाहर आएगा, वरना कैसे आएगा। सो उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर, ओके। सो दैट इज आई रिचर्ड, ओके, उनका एक ही वर्क था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते